Hi friends, welcome back to EduTap. So in this session, we are going to discuss some of the important MCQs on accountancy for the upcoming UPSC EPFO examination. So fadafat say let's quickly start this session. So friends, in the EPFO EO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. So my dear friends, let's start our discussion by taking a look at the homework question. So हमारे पास ये क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर द बिजनेस. ऑप्शंस है इनकम, एक्सपेंस, गेन या फिर नन ऑफ द अबव. तो वी ऑलरेडी नो कि कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. So this business has to pay some interest to the owner on this capital, which is the amount which is being invested, which is being blocked in by this owner in the business. अगर ये ओनर बिजनेस में पैसे ना लगाकर कहीं और इन्वेस्ट करता, बैंक में एफडी करा देता, तो he would have got some interest. So now this business has to also pay some interest on capital to the owner, and that's why this is going to become an expense for the business. If you remember कि हमारा जो business है and the owner, the businessman, they are two separate entities, दोनों अलग अलग हैं. तो ये owner के लिए income हो सकती है, but business के लिए this is going to become an expense. So correct answer is going to be option number B. Coming to the next question. So this question is drawings account is in the nature of. तो हमारा जो drawings account होता है उसकी क्या nature होती है? This is what is being asked in this question. Is it a personal account? Is it a real account? Is it a nominal account? Or none of the above? So my dear friends, हमारे पास three categories of accounts हमें देखने को मिलते हैं. पर्सनल अकाउंट्स दे रिलेट टू पीपल. जैसे अगर आपका अकाउंट मैंने अपनी बुक्स में खोला हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट दे रिलेट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Nominal accounts they relate to incomes and expenses. Okay, so this drawings account is basically an account which is opened in the name of the owner of the business who is withdrawing some amount of money or some goods from the business for his personal use. तो ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे जो हो रहे हैं, दे बेसिकली डिनोट द ओनर ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस का ओनर है उसे यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. And this owner being a person, this drawings account is going to become a personal account. So correct answer has to be option number A. Option number A would be the correct answer. So as discussed, option A is the correct answer for this question. Coming to the next question, and this question is income tax paid by the sole proprietor from the business bank account is debited to. Options are income tax account, bank account, capital account or not to be shown in the business books. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्सपेंस पे कर रहा है, प्रोप्राइटर पे कर रहा है बिजनेस के बैंक अकाउंट से, सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. सो वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेस को चलाने वाला है, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज. ओके, तो बिजनेस हमारे जो ओनर है उनको कुछ प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, एंड इस प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ओनर. तो ओनर की जो ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करना, उसके लिए ही इज यूजिंग द बिजनेस बैंक अकाउंट. ओके, तो बिजनेस का अगर बैंक अकाउंट यूज कर रहा है तो बिजनेस इसका क्या ट्रीटमेंट करेगा? बिजनेस इज गोइंग टू ट्रीट इट एज अ ड्रॉइंग्स. उसे ड्रॉइंग्स ट्रीट करेगा कि आपने अपना जो कैपिटल था उससे कुछ विड्रॉ कर लिया. सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट? अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर is going to be capital account. अगर हमारे पास drawings account ऑप्शन में होता, that would be more appropriate, but अब drawings नहीं है, so we are going to adjust this amount from the capital account itself. So the most appropriate answer would going to be option number C. So as discussed, option number C is going to be the correct answer because ये personal expenditure है owner का, और अगर उसके लिए वो business का इस्तेमाल कर रहा है, it is going to be part of drawings which is ultimately adjusted through the capital account itself. Coming to the next question, trade receivables of Messrs Santosh amounts to rupees 25,000 and bad debts rupees 3,000. Messrs Santosh provides for doubtful debts at 2% and for discount at 1%. The amount of net trade receivables to be shown in the balance sheet is going to be. Options are 21,560, 22,000, 21,780 या फिर 21,344. तो हमें बोला जा रहा है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000 के हैं, बट उसमें से 3,000 तो they have already gone bad, they are not going to pay you back, so ultimately you have to reduce it. So 22,000 is what you can expect to receive. बट यहाँ पे भी
अभी आपको डाउट है कि 2% लोग पैसे नहीं देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू बैक, सो अल्टीमेटली आप इसका 2% प्रोविजन बना लेंगे. सो 440 इज गोइंग टू बी माय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड the ultimate amount is going to become 21,560 which is expected to be paid to me. But अभी अभी ये भी डाउट है कि जो 21,560 लोग देने आएंगे they are going to demand some discount, तो उनको कुछ डिस्काउंट देना पड़ सकता है, 1% डिस्काउंट देना पड़ सकता है. सो 1% ऑफ इट आई थिंक इज गोइंग टू बी 216. और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, so this correct answer is going to become, this is going to come out to 21,344. okay, तो अल्टीमेटली आपके जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे, वी आर बीइंग आस्क्ड कि नेट ट्रेड रिसीवेबल आप अपनी बैलेंस शीट में कितना शो करोगे, वी आर गोइंग टू शो इट एज 21,344. तो हम अपने जो डेटर्स है सबसे ऊपर लिखेंगे ग्रॉस डेट 25,000, उसमें से 3,000 के बैड डेट्स घटा देंगे, 440 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटाएंगे एंड 216 का प्रोविजन यहाँ पे घटाएंगे डिस्काउंट के लिए, and ultimately the net balance of the trade receivables or debtors is going to be 21,344. so correct answer would be option number D. so I hope आपको कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशंस आर गिवन एट द एंड ऑफ. ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ईच लेजर अकाउंट या फिर ईच जर्नल एंट्री. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री डालते हैं, लेट्स सपोज आई हैव मेड दिस जर्नल एंट्री कि मैंने सैलरी पे किया और उसको पे किया मैंने कैश के अंदर, और ये 5,000 का सैलरी यहाँ पे मैंने पे किया. तो सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट किया, कैश एक एसेट है जो कि कम हो रहा है, उसे यहाँ पे क्रेडिट किया, और इसके नीचे मैं ब्रीफ में एक एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं. मैं लिख देता हूं सैलरी पेड इन कैश, बीइंग अ सैलरी पेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023. और मैं ऐसे लिख सकता हूं बीइंग सैलरी इन पेड इन कैश टू लेट्स सपोज टू मोहित. तो ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूं. तो ऐसा लिखने से फ्यूचर में आई कैन चेक दी नरेशन और मुझे ये एंट्री और अच्छे से समझ में आ सकती है. अगर मुझे फ्यूचर में रेफर करना पड़े, कोई और अगर इस एंट्री को देख रहा है तो वो भी इस एंट्री को दोबारा से रेफर कर सकता है. और अगर यहाँ पे मुझे कोई फ्यूचर में लगता है मैंने गलती कर दी थी इस एंट्री में, तो नरेशन पढ़ के मुझे पता लग जाएगा कि मैंने एंट्री सही किया था या फिर नहीं किया था. सो दीज नरेशंस, these brief explanations that you are giving after each journal entry, they can be very useful for future. okay, so that's why you include this while making the journal entries. so the answer to this question is going to become option number D, कि आप इन narrations को record करेंगे after each journal entry. so as discussed, option number D, each journal entry, would be the correct answer for this particular question. coming to the next question, the concerned account debited in the journal should be. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने किसी अकाउंट को जर्नल में डेबिट किया है तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करने वाले अपनी लेजर के अंदर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो हमने अभी एंट्री डाला था, जो एंट्री डाला था उसी को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. हमने एंट्री डाला था कि हमने सैलरी पे किया कैश के अंदर, 5,000 का कैश में सैलरी पे किया, सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया और कैश को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था. ओके, अगर मैं सब एंट्री को जर्नल से लेजर में पोस्ट करता हूं, सो हाउ दिस इज गोइंग टू बी पोस्टेड. लेजर इट बेसिकली मींस एन अकाउंट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी अकाउंट हियर. तो सैलरी अकाउंट में अगर मुझे पोस्ट करना है, इसके दो साइड है, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है. आप फटाफट से बताइए कि कौन सी साइड पे मैं ये लेकर जाऊंगा. यहाँ पे जो पेमेंट मैंने किया 5,000 का, सर सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस, आपने उसे डेबिट किया, सो दिस शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सैलरी अकाउंट. ओके, तो मैं यहाँ पे इसके डेबिट साइड पे लिख देता हूं 5,000. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इसके साथ मैं क्या लिखूं, मैं सैलरी लिखूं या कैश लिखूं या कुछ और लिखूं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि आप सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे से मेंशन करेंगे एंड द रेफरेंस इज टू बी गिवन ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट. तो आप यहां पे लिखेंगे कैश 5,000. सो दिस इज गोइंग टू मीन कि आपने कैश में सैलरी पे किया था 5,000 का. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सैलरी अकाउंट and the reference is going to be of the respective credit account. So the concerned account debited in the journal. okay, तो यहाँ पे आप सैलरी पढ़िए, concerned account को सैलरी पढ़िए आप. सैलरी अकाउंट debited in the journal should be debited in the ledger. ledger में भी डेबिट साइड पे लिखा, बट रेफरेंस डाला of the respective credit account. so correct answer, I hope आपको पता लग गया, it is going to be option number A. So option number A, my dear friends, is going to be the correct answer for this question. And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well.
Coming to the next question, the basic consideration in distinction between capital and revenue expenditure is R. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यू ऑलरेडी नो, हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर जो बेनिफिट देगा इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. आप कोई मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं तो आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे आर द रूटीन नेचर एक्सपेंडिचर व्हिच यू आर डूइंग. आप बिजनेस में सैलरी पे कर रहे हैं और कोई रूटीन नेचर का रेंट पे कर रहे हैं, आप परचेजेस कर रहे हैं नॉर्मली, सो दे आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दे आर टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स दे आर शोन इन द बैलेंस शीट. तो यहां पे आप कैसे डिटरमाइन करेंगे एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर. यू आर गोइंग टू हैव सम बेसिक कंसीडरेशंस. ओके, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से कंसीडरेशंस को आप ध्यान में रखेंगे. ऑप्शंस आर नेचर ऑफ द बिजनेस, इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, पर्पस ऑफ एक्सपेंस और ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो अगर मैं बात करूं पर्पस ऑफ द एक्सपेंस की, तो अगर मेरा एक्सपेंस जो मैंने इनकर किया है इट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, वो मुझे शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा तो आई एम गोइंग टू टेक इट टू P&L. अगर लंबे समय में बेनिफिट देगा तो आई एम गोइंग टू टेक इट टू बैलेंस शीट. सो दिस समहाउ रिलेट्स टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. If I talk about the effect on revenue generating capacity of the business, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, this is going to give me benefits for a longer time period. This is going to have impact on the long term revenue generating capacity of the business. But the normal routine revenue expenditures, they are only going to have a short term effect on the revenue generating capacity of the business. So ultimately this is going to again determine whether an expenditure is capital or revenue in nature. So B is also going to be a determining factor. Next is the nature of the business. तो मेरा business का nature कैसा है. Let's suppose I am in the business of trading of stationery products, और अगर मैं stationery products की trading करता हूं तो मेरे लिए अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर खरीदता हूं, मैं शॉप पे रेफ्रिजरेटर खरीदता हूं ताकि कस्टमर्स को ठंडा पानी पिलाऊं, एम्प्लॉइज को ठंडा पानी पिलाऊं, और ये जो एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूं दिस इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. ये फ्रिज मेरा सालों साल चलने वाला है, सो आई एम गोइंग टू टेक इट एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट अगर लेट्स सपोज मेरा बिजनेस ही होता है ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, तो फ्रिज मेरे लिए एक नॉर्मल रूटीन का परचेजेस होता है जो कि मैं खरीद कर आगे बेच दूंगा. So this would have become a revenue expenditure. Okay, तो मेरा बिजनेस का नेचर कैसा है, this is also going to determine whether an expenditure is capital or revenue in nature. So all of these are going to be the basic considerations. So as discussed, the correct answer is going to be option number D, all of the above. Coming to the next question, when opening inventory is overstated, net income for the accounting period is going to be. तो आपसे पूछ रहे अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो उसका नेट इनकम पे क्या इफेक्ट आने वाला है. तो ओपनिंग स्टॉक आप दिखाते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, आप अपने परचेजेस दिखाते हैं, आप अपने सेल्स दिखाते हैं, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं. अल्टीमेटली you determine your gross profit and it ultimately determines your net income or net profit. Okay, तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें, लेट्स सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 50,000 था, सेल परचेजेस हमारी 3 लाख की थी, सेल्स लेट्स सपोज हमारे पास जो थी वो 3,50,000 की थी, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 20,000 का. सो अल्टीमेटली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जहां पे जो निकल कर आएगा, दोनों का टोटल दोनों साइड्स का क्या निकल कर आया 3,70,000. ओके, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. सो दिस 20,000 इज गोइंग टू बी माय ग्रॉस प्रॉफिट. अगर मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर दूं, इसे ज्यादा शो कर दूं, लेट्स सपोज मैं इसे 50,000 की जगह मैं इसे 65,000 शो करता हूं, तो मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जो 20,000 आया था ये कम होके रह जाएगा 5,000 एंड अल्टीमेटली माय नेट इनकम इज आल्सो गोइंग टू रिड्यूस. तो अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाते हो, ओवरस्टेट करते हो, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस योर ग्रॉस इनकम एंड अल्टीमेटली योर नेट इनकम. सो नेट इनकम इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और अंडरस्टेटेड. सो एज डिस्कस्ड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. Coming to the next question, a purchase of rupees 1870 by checks has been wrongly posted in the cash book as rupees 1780. This is going to have the effect of. तो आपने परचेज किया 1870 का बाय चेक से, आपने उसे कैश बुक में रोंगली पोस्ट कर दिया. सर कैश बुक में चेक कैसे पोस्ट कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स डू रिमेंबर कि हमारी जो कैश बुक्स बनती है ना उसमें 2 कॉलम हो जाते हैं, एक कैश का कॉलम हो जाता है और एक बैंक का कॉलम हो जाता है. तो कैश बुक में आपका कैश और बैंक दोनों के बैलेंस आपको देखने को मिलता है.
तो अगर आपने परचेज किया था 1870 का, सो दिस वुड हैव रिड्यूस्ड योर बैंक बैलेंस बाय 1870. ओके, आप इसे 1870 शो करते अपने क्रेडिट साइड पे, बट यू हैव डन दिस मिस्टेक एंड शोन इट एज 1780. आपने 90 रुपीज से इसे कम शो किया. आपने अपना बैलेंस जो है उसे कम करना था 1870 से, बट आपने केवल 1780 से कम किया. सो अल्टीमेटली जो आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, दिस इज गोइंग टू शो 90 रुपीज मोर. आपका बैलेंस 90 रुपीज ज्यादा शो करेगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बट एक्चुअली में वो यहाँ पे 90 रुपीज कम होने वाला है. तो 90 रुपीज का डिफरेंस यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया. आपने किसी को दिए, लेट सपोज आपने किसी को 1870 दिए, बट आपने उसे 1780 मेंशन किया अपनी बुक्स के अंदर. तो आपको अपनी बुक्स में लगेगा मेरे पास कैश ज्यादा पड़ा है, बट अल्टीमेटली आपके पास जो कैश होगा इट इज गोइंग टू बी लेस बाय ₹90. So this is going to have the effect of increasing your bank balance in the books of accounts. यहाँ पे in the books of accounts भी लिखना चाहिए था to make it more clear. This is going to increase your bank balance in the books of accounts by ₹90. This is going to show you a false picture. Okay, तो correct answer यहाँ पे option number A का बनेगा. So I hope this is clear. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. Option A is the correct answer. Coming to the next one. A second-hand car is purchased for ₹2 lakh. The amount of ₹25,000 is spent on its repairs. ₹5,000 is incurred to get the car registered in the owner's name, and ₹2,000 is paid as the dealer's commission. The amount debited to car account is going to be, options are 2,32,000, 2,25,000, 2,30,000 or 2,05,000. तो आपको जो कॉस्ट कंसेप्ट है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉस्ट कंसेप्ट. दिस कॉस्ट कंसेप्ट सेज कि जो भी आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, वट एवर अमाउंट यू आर इनकरिंग व्हेन यू आर परचेजिंग एनी फिक्स्ड एसेट, एनी लॉन्ग टर्म एसेट, सो एनी अमाउंट व्हिच इज बीइंग स्पेंट टू मेक इट इन द यूजेबल कंडीशन, टू ब्रिंग इट इन द वर्किंग कंडीशन, you have to capitalize that particular amount. You have to include that amount in the cost of the fixed asset itself. तो यहाँ पे हमने 2 लाख का कार खरीदा और उसको यूजेबल बनाने के लिए 25,000 का रिपेयर करना जरूरी था, और हमें 5,000 इनकर करना पड़ा टू गेट इट रजिस्टर्ड इन योर नेम, विच इज अगेन लीगली नेसेसरी, एंड ₹2,000 आपको स्पेंड करना पड़ा डीलर का कमीशन, विच वाज आल्सो रिक्वायर्ड. तो अगर आपसे अल्टीमेटली पूछते कि आपको कार कितने की पड़ी, यू आर गोइंग टू से कि मेरे को जो टोटल कार पड़ी उसमें आप इन सभी को ऐड करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू से मुझे टोटल कार 2,32,000 की यहाँ पे पड़ी है. एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ द कार फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव. एक बिजनेस के लिए जो कार है उसकी कॉस्ट 2,30,000 कंसीडर की जाएगी, बिकॉज दिस वाज द एंटायर अमाउंट टू गेट द कार. ओके, टू गेट द कार इन द यूजेबल वर्किंग कंडीशन. तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनने वाला है. So I hope this is clear. Option A is the correct answer. यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, a very easy question, and I am going to expect many of the comments of the right answers from you for this question. And my dear friends, अगर आप UPSC EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, we have multiple courses for this exam which you can check out. And if you have any query regarding these courses, you can call us or mail us at hello@edutap.co.in. So this is it for today. Thank you.